Hello and a very warm welcome. In today's session, we will be focusing on digital transformation and cyber security for MSMEs. टेक्नोलॉजी जब तेज रफ्तार से जिंदगी और कारोबार को बदल रही है, ऐसे में हम डिजिटल फ्रंट पर ट्रेंड्स, न्यूअर अपॉर्चुनिटीज और इनके बीच एसएमईज कैसी स्ट्रैटेजीज पर काम करें, इसी पर मंथन करेंगे. आई एम हैप्पी टू वेलकम तेजस गोयंका, मैनेजिंग डायरेक्टर टैली सॉल्यूशंस. साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर अजय डाटा, चेयरमैन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप UASG एंड को चेयर ICT कमिटी FICCI. आप दोनों का ही शुक्रिया. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. तेजस साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं. द इंडियन SME कम्युनिटी इज मूविंग अहेड ऑन द पाथ ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. In fact, COVID has accelerated digital adoption. What are some latest trends and learnings that you can share on this front? I think the trends for digital adoption and digital technology adoption with SMEs has been there for a very long time. SMEs in general, you will find, are extremely open to trying out new things, trying out ways to improve their business. And I think it's a trend that we've seen for the last 35 years that we've been around. But you're right, COVID has certainly made a big difference over the last 2 years. And I would say that there are certain categories of technologies that have really shone through. तो एक चीज ये है कि कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस है, कि हमें ये लग रहा है और महसूस भी हो रहा है कि काम कहीं से भी करना है. सो जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग, यू आर सिटिंग इन सम सिटी, आई एम सिटिंग इन सम सिटी एंड वी आर टॉकिंग. Most SMEs have felt this need and have now gotten very used to I guess working from anywhere. तो ये पहली चीज है. दूसरी चीज ये है कि ऑटोमेशन पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है, because people are realizing that it's difficult to have a sustained expectation from the employee force. People are getting new opportunities, moving on, and there is some amount of consistency needed in the business. I think these are the two big trends that we're seeing. तेजस, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रेडिशनल यूनिट्स को, उन्हें टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आपका क्या मानना है? माइक्रो एंटरप्राइजेस भी इन जनरल व्हाट वी हैव सीन इज कि वो लोग बहुत ओपन है. They are very used to trying, but there is a lot of burden on manufacturers like Tally to make the right systems that will work for SMEs. I think the biggest barrier that SMEs face is there are so many choices that are there कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड एक ही सिंपल मंत्र है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, बस यू हैव टू जस्ट रियलाइज दैट यू डोंट नेसेसरली नीड टू चेंज योर बिजनेस to use that technology. And if that technology can meet that promise, सिर्फ एक ही चीज पर, I think for micro enterprises there is a distance to travel for companies like us to make systems relevant for them. But I think we've seen a lot of openness from the community in general. Ajay ji, technology has changed many aspects of human life. The way we live, we communicate, the way businesses are being done, and much, much more. आगे चलते हुए क्या आप मानते हैं 5G से एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है, और उसके क्या मायने होंगे बिजनेसेस के लिए? The world is going to witness a quantum change, I believe, and I think हम सब लोग एग्री करेंगे कि जो अभी ये PM मोदी जी ने 5G ऑक्शन को अलाउ किया है इन जुलाई, and total 72 gigahertz of spectrum with a validity of 20 years will be put to auction. What it means? It means a lot. It will impact every person's life. There is no doubt about it. Why? Because as we're talking to Tejas, connectivity becomes a very important factor. Digital adoption becomes an important factor. And this is the root of digital adoption, because everything will travel. If you are watching a movie on Netflix, it's traveling, data is traveling. At how fast it can travel? Ajay ji, as compared to 4G, 5G is expected to be 10 times faster. इससे आप मानते हैं स्मार्ट फैक्ट्रीज को काफी बूस्ट मिलेगा? 5G स्पेक्ट्रम जो है ना, वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट कवर करेगा. लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज is a low frequency. It will go up to the high of 26 gigahertz. Frequency bands are expected to be utilized by telecom services. And एक OFDM टेक्नोलॉजी होती है उसमें, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. उसमें जो डेटा है वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, मल्टीपल रूट्स के थ्रू एक आदमी के पास पहुंचता है. And that is where the speed and the data transmission increases, because data is not coming from
one place, it is coming from many places, and they're getting combined. That's the technology of 5G is. It is 10 times higher. Imagine that your stethoscope is in your heart, and it can be heard at the same second at some place remotely. The amount of data which can transmit, considering metaverse, considering the VR and AR and AI is in the world, this all things will make a huge quantum jump in our daily life. यानी बदलाव की हवाएं, winds of change देखी जा रही हैं जो बहुत कुछ बदल देंगी. Tejas, do you agree that cloud computing is changing the way business was being done? The cloud is giving easy access to a broad range of technologies. There are customizable offerings. यहां तक कि SMEs IT जितना कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से पे भी कर सकते हैं. लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं. आपका क्या मानना है? Those of you who don't know what cloud computing is, basically क्या होता है कि एक cloud server बैठता है. There's a server at the back end, and your system connects to the computing power that that server offers you. And this can really, really change the game. We have been hearing about cloud a lot. और ये एकदम जल्दी से experience बदल सकती है business के लिए. But cloud में भी थोड़े concerns हैं. Privacy की concern है, security की concern है, और कभी-कभी reliability की भी concern हो सकती है. So I think that while cloud is enabling a lot of good experiences, again, I will say that the burden is on companies like us who have to make such technologies available, keeping privacy, security, and reliability in mind. Finally, जब वो चलेगा, then I think the big wave of cloud adoption will really hit. Tejas, on the cloud front, with the growing needs of the company, can the SMEs even upgrade? Absolutely. It's much cheaper and much easier to upgrade as the company keeps growing. So will it be right to say that cloud is leading to a level playing field between large and small businesses? आगे की राह कैसी दिख रही है आपको? So again, it depends on the cost of the technology. Earlier, what was the promise of cloud when you needed to use heavy computing systems? That used to be very expensive for small businesses, and only large businesses could afford it. That's why people are saying that cloud can be an enabling factor and create a level playing field for both small and large companies. But that really depends on what product, what type of application you are wanting to use and what you're using it for. If the application remains expensive, it still remains out of reach for smaller businesses. So cloud enables, again, manufacturers like us to create that level playing field. But it is not something that can be just simply taken for granted. And for small business owners, the advice that I would give is to be careful in looking at what types of products can really help your business. It's confusing, it is complicated, there are many, many choices, but you have to use a simple metric. Can my business really use this? And what minimal effort do we need to make in our own companies to adopt to this technology, or let the technology at least adopt to us? That would be the best case. Ajay ji, as you were mentioning about 5G, in fact, 5G will be crucial for the future development of self-driving vehicles as well. यानी कुल मिलाकर 5G से काफी हलचल हो जाएगी, काफी एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल देगा. ऐसे में आप स्मॉल बिजनेसेस को क्या कहना चाहेंगे? How should they move ahead in this fast-changing world? One is technology-driven business. One is technology business. Technology-enabled or technology. What you are referring to a technology-driven business. टेक्नोलॉजी के अंदर जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की देर से बात कर रहे थे आप, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग, जितना चाहिए उतना ले लीजिए. तो कंप्यूटिंग तो हो गई, क्लाउड पे सर्वर्स आ गए, रैम आ गई, एंड यू कैन आस्क एज मच एज यू वांट ऑन डिमांड. 1 सेकंड बाद आपको 8 CPU 16 GB रैम चाहिए, आपको मिल जाएगा. How you will connect to the server is what 5G will give you at a very high speed. Message to SME is very simple. The things will be impacted faster than you can think, sooner than we can imagine, and it will impact every business we are in, we can imagine. No business will be left away from impact of 5G in the future. So we need to be ready with the fast changing environment of networks availability, speed availability, the technology is being available, because otherwise, if you do not adopt the technology the fastest way, it is going to make a huge dent and which may be irrecoverable. तेजस जी पर जाने से पहले एक और पहलू अजय जी आपसे जानना चाहेंगे. South Korea became the first country to roll out 5G network for businesses, B2B. इसमें भारत के लिए क्या learnings हैं? We are able to create indigenous 5G
and with a more matured way, because we have learned from the mistakes, we have learned from the experiment, from what is working, what is not working. So India is very well positioned from the early mistakes. अर्ली मिस्टेक करते हैं तो अर्ली अडॉप्शन भी करते हैं, लेकिन अब हम चूंकि अडॉप्शन सेकंड स्टेज पे कर रहे हैं, तो वी हैव लर्नड क्वाइट द लेसन्स which spectrum is the perfect one, where we have a better power management on the devices. Imagine that the protection on using 5G is the phones are going to have better battery life. Why? Because the work which you try to do, let us say downloading a 1 GB file on a phone, downloading the data, downloading your emails is going to be more faster. So the computing and the RAM is going to consume less for lesser time, and thus the battery life will grow from the battery life for discharge will grow from 8 hours to 16 hours and 24 hours. This is the kind of discussion which is happening, but this has been learned now from the Korean experience. So Tejas, in this changing world order, in order to enhance productivity and improve quality, to tap newer opportunities, what is your advice for SMEs? That's a great question, Saurabh. I think over the last few years, we've seen the world opening up to India. बहुत सारे opportunities आ रहे हैं. And I think there are, and while it is in some senses also difficult times, I think the SME community has done very, very well. And for those who haven't had this opportunity, there are broadly two groups of opportunities. There are domestic opportunities और विदेशी opportunity भी है, exporting opportunity भी है. And I think there are a few things that you can do. The first is become aware. बहुत सारे programs हैं जहाँ you can gain this awareness. The government is doing a lot. There are several agreements that the government has signed which open up these opportunities. I think the second thing is there is a lot of availability of capital as well. Despite interest rates going up over the last few months, I think there's an access to capital which the government has been enabling since the time of COVID. And a lot of people have not yet taken advantage. So वहाँ पे भी opportunities है. I would really encourage this. And then the third is, of course, looking at technology and how technology can help you. Time for final comments, beginning with you, Tejas. The majority of SMEs use some basic security controls, and the lack of security measures can result in SMEs falling victim to an increased number of cyber attacks. So what is your advice to the SMEs? Oh, certainly. Cyber crimes, the more technology we use, the more crime in that world will keep increasing. And I don't think there is any individual nor any business that can escape from it. And it is always much, much better to be safer than realize your mistakes later on. So keeping that in mind, there are some very basic things that you can start doing. There are some basic tools that you can start using to ensure that you are remaining protected. Banks keep sharing these things with us. Technology providers keep sharing these things with us. So your digital devices do need to be protected. Your phones need to be protected. Your habits need to be safer. Not sharing passwords, not sharing pins. These are basic things that one can do. And of course, keeping a little bit aware of kya ho raha hai, and not getting scared, but just making sure that these basic actions are taken is honestly a good enough start. तेजस, पॉलिसी सपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? कई कदम सरकार की तरफ से लिए गए हैं एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए मुश्किल समय में, और किस तरह के स्टेप्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? I think the government has been doing a lot to make life a lot easier for MSMEs. And I think that there is still a lot more that can be done, especially on the procedural front. Businesses and business owners should tend to spend 80, 90, 100% of the time, ideally, on growing their businesses and being able to serve their customers better, find better suppliers, dealing with suppliers well. And I think in the last few years, there have been some procedural challenges around indirect tax, GST. They have been making some changes, but I think that if we are able to somehow make the system a lot easier to manage, this can enable much more time in the hands of the business owners, which they can use for growth. Ajay ji, what is the latest on the multilingual internet? इससे MSMEs के साथ उनकी लोकल लैंग्वेज में कनेक्ट करना आसान हो जाएगा. 500 मिलियन लोग जो हैं वो अभी इंटरनेट पे नहीं है. अगर किसी का भी बिजनेस ऑनलाइन बेस्ड है, डिजिटल बेस्ड है, तो जो नई अभी कस्टमर बेस बढ़ रहे हैं
वो सब नए लैंग्वेज बेस्ड कैटेगरी में बढ़ेंगे, जिनको हर कुछ अपनी लैंग्वेज में चाहिए। इट इज लाइक अगर कोई जना आप कितनी भी इंग्लिश जानते हैं, अगर आपको चाइनीज में कंटेंट दे दे या चाइनीज में वेबसाइट दे दे, उसका यूआरएल चाइनीज में दे दे, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इट कुड बी ए गवर्नमेंट ऑथेंटिक वेबसाइट। Same is with the language. We must get ready ourselves for multilingual internet, multilingual users in the country. They are going to come back with the email address in the language of their choice. That's going in the countries very, very quickly. And people will have email address in the language of what they speak. And all the 22 languages are now enabled by Government of India, and email addresses are being provided in that. Content is being pushed. Government of India has created a policy that all the websites, all the policies which are going to be announced are going to be made at least in 3 languages: Hindi, English, and a regional language of that state. So the word is moving, government is pushing that very hard, and I think it will impact also almost everyone, every business who is not understanding right now about the new kind of customers coming in. They will also come in into the system with new identities which they have been not seen before. That's all the time we had. Tejas Goenka, Managing Director, Tally Solutions, Dr. Ajay Dara, Chairman, Universal Acceptance Steering Group and Co-Chair, ICT Committee, FICCI, आप दोनों का ही शुक्रिया। थैंक यू। अगला सेशन होगा साइबर सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं पर। इस दौर में साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सेगमेंट में हम स्मॉल बिजनेसेस के लिए इसी के तमाम एंगल्स को टच करेंगे। इस अहम कन्वर्सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रक्षित टंडन, हेड ट्रेनिंग, साइबर पीस फाउंडेशन। डॉक्टर टंडन, आपका शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर टंडन, ये सेगमेंट सीरीज स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। तो अगर हम देखें, पैंडेमिक ने इस स्पेस में डिजिटल अडॉप्शन को एक्सेलरेट कर दिया, फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि साइबर क्राइम्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? कैसा फीडबैक आपको मिलता है? ज़मीनी हकीकत को आप कैसे देखते हैं? नंबर्स तो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और उसमें कोई डाउट नहीं है। ड्यूरिंग कोविड सब कुछ ऑनलाइन हो गया। देयर वाज अ न्यू नेम कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम, और उस वर्क फ्रॉम होम में लोग इतने तैयार नहीं थे टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स को समझने के लिए। और जो उसी समय जो ऑनलाइन फ्लो इन्फॉर्मेशन का बढ़ा, तो हैकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई। ये वही बात हो गई कि मुझे पता चल गया कि भाई हाईवे पे बहुत ट्रैफिक बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और वही हमने देखा कि बहुत तेज़ रफ्तार से हर डायरेक्शन में, हर डायमेंशन में, राइट फ्रॉम सोशल मीडिया टू योर ईमेल्स टू योर बिजनेसेस, अटैक वेक्टर्स बढ़े। और साइबर अपराध की संख्या 2020-21 में बहुत तेज़ी से ऊपर गई, और उसमें बहुत तेज़ी से पैसे का बहुत नुकसान हुआ। डॉक्टर टंडन, ये भी देखा गया, डिस्पाइट extreme importance of cyber security, small businesses don't take this aspect so seriously as they should. In fact, उनका ये मानना होता है कि हम तो स्मॉल हैं, हमें क्या साइबर अटैक का खतरा, या ये भी कहते हैं कई बार हमारे बजट्स लिमिटेड हैं, हम कैसे इसके लिए आगे बढ़ें। इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जड़ों से देखें तो जड़ों में ये था कि कंप्यूटर ले लिया असेंबल्ड, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पायरेटेड डलवा लिया, एंटीवायरस पायरेटेड डलवा लिया। ये वही बात हो गई कि मेरी गाड़ी और मेरा ड्राइवर दोनों ही चोरी के हैं और दोनों ही आतंकवादी हैं, और उस गाड़ी में मैं बैठा हूं, तो मैं कहां से सुरक्षित हूँगा। तो शुरुआत वहां से हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते थे, लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगा एज एक्सपर्ट कि इस 2 साल में लोगों ने जाना, जब अटैक्स हुए, मतलब लोग वेट करते हैं कि जब मेरे साथ हो जाएगा तब मैं जागूंगा कि हाँ भाई, साइबर सुरक्षा मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक है। तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, एक सज्जन के साथ एक घटना घटी प्री कोविड। उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे एक अटैक हुआ, और हमने तब उन्हें एक सोल्यूशन दिया कि आप ये सोल्यूशन अपना लें, इससे आपकी ईमेल्स और आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा। तो उस समय उनको ये खर्चा बहुत बड़ा दिखाई दिया। कोविड के दौरान ये दोबारा अटैक हुआ, और इस बार अटैक में उनका काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ। एंड देन ही वॉज लाइक डेस्परेट कि आप अभी मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दो। तो खैर, ये हुआ है। और मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि देखिए, आज हम लोग इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एरा में हैं। वो ज़माने गए जब मेरे यहाँ कागज़ों और रजिस्टरों में एंट्री हुआ करती थी। आज अगर मैं एक छोटा सा होटल भी चलाता हूँ तो सुबह से रात तक मेरे यहाँ कितने गेस्ट आए उसकी जानकारी मुझे नहीं, मेरे कागज़ को नहीं, मेरे आदमी को नहीं, मेरे कंप्यूटर को है। और अगर वो कंप्यूटर अगले दिन सुबह 6 बजे फेल हो जाए तो जो 12 गेस्ट चेकआउट के लिए खड़े हैं, मुझे ये तक नहीं मालूम कि उन्होंने मेरे होटल में क्या क्या कंज्यूम किया, उनका कितना बिल बनता है और मैं कैसे उन्हें चेकआउट करूं। तो ये अहमियत है आज
आज डिजिटल डेटा की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की और इसको बचाने की। आप कुछ टिप्स दे सकें जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इस फ्रंट पर कैसे आगे बढ़े? फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन है तो 2 स्टेप्स रख लें, या जैसे डेटा है, अब डेटा का बैकअप ज़रूरी है, बैकअप भी उसी सिस्टम में रख लेते हैं तो फिर इनफैक्ट ये तो ज़रूरी है कि किसी एक्सटर्नल डिवाइस पर तो बैकअप लें। आपको पता है आज सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोग व्यापार और बिजनेसेस की तरफ देख रहे हैं, दैट इज़ रैनसमवेयर अटैक, डिजिटल किडनैपिंग। एक ज़माने में हम किडनैपिंग से परेशान रहते थे कि कहीं कोई हमें किडनैप ना कर ले। आज हैकर जो है वो हमारे चलते हुए व्यापार का पूरा डेटा किडनैप कर लेता है, उस पर ताला लगा देता है और कहता है चाबी मेरे पास है, चल फिरौती दो। अब तुम फिरौती नहीं दोगे तो तुम्हारा तो काम चल ही नहीं सकता। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। सबसे पहले तो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना। वो ज़माने गए जब हम कहते थे पासवर्ड तो हमारे यहाँ साइबर हाइजीन इतनी कमज़ोर है कि अभी भी 10 में से 9 राउटर्स का पासवर्ड 1 2 3 4 5 है, वो बदला ही नहीं है हमने। जो वेबसाइट मेरी बन के आई थी, जिस डेवलपर ने बनाई थी, उसका मास्टर पासवर्ड आज भी एडमिन है, यूज़र नेम, और पासवर्ड उसका 1 2 3 4 5 6 होगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है साइबर हाइजीन। उसके बाद ज़रूरत है डबल ऑथेंटिकेशन। जैसे बैंक का लॉकर 2 चाबियों से खुलता है, एक से नहीं खुलता है, इसी प्रकार से मेरा कोई भी आईडी हो, मेरा ऑफिशियल आईडी हो, मेरा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो, मेरा ईमेल हो, मेरा बिजनेस ईमेल हो, उसमें डबल लेयर ऑथेंटिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना कंपलसरी है। दूसरा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एंटीवायरस और जो ऑफिस टूल्स आप चलाते हैं अपने ऑफिस में काम करने के लिए, वो तीनों जेन्युइन और अपडेटेड रहने चाहिए। क्योंकि आप रोज देखते हैं वल्नरेबिलिटी कहते हैं, मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई कमी थी, हैकर ने वही दरवाजा खुला देखा, वहां से घुस गया। अगर मैं रेगुलरली अपडेट रखूं, और मैं कंजूसी क्यों कर रहा हूं साहब, डेटा खर्च होता है। नहीं साहब, डेटा खर्च नहीं होता है। अगर मेरे पास अलर्ट आया कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल प्रॉब्लम है, हमारी भाषा में कहते हैं टेक्निकली वल्नरेबिलिटी, तो फौरन उसे पैच करिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जो मेरे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जैसे कुछ लोग एंटीवायरसेस हैं, डेटा लीकेज प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दे शुड बी अपडेटेड। फायरवॉल्स होनी ज़रूरी है, और ये कोई बहुत बड़ा खर्चे का मसला नहीं है। अगर हम एक 2 कंप्यूटर की कंपनी चलाते हो या 250 की, खर्चा लगभग बराबर ही होता है। एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है और अपने आईटी स्टाफ को अपग्रेड रखने की ज़रूरत है। ये जैसे हम देख रहे हैं बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, और बिजनेसेस में जनरली एक कैश का चलन रहता था, लेकिन अब जैसे डिजिटल ऑप्शन देख रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब उस संदर्भ में अगर हम देखें, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो उससे प्रोटेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी अहम है बिजनेसेस को। इस फ्रंट पर आप क्या बताएंगे? मैन और मशीन आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। जिस मशीन से मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग करता हूँ अपने बिजनेसेस की, वो बिल्कुल एक तरह से आइसोलेटेड कह लीजिए, या फालतू सॉफ्टवेयर्स नहीं होने चाहिए, कोई उल्टी सीधी वेबसाइट नहीं खोलनी चाहिए। हमेशा अपने ब्राउज़र को इनकॉग्निटो मोड में रखना चाहिए जब भी हम नेट बैंकिंग करें, और एक नंबर जो हमारे बैंक से अटैच्ड है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। मतलब आजकल हैकर्स हमारा सिम तक हाईजैक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बैंक की चाबी तो सिम में है, हर चीज़ का OTP आता है, तो वो। और दूसरा, मैंने क्या देखा है कि लोग वेबसाइट्स नहीं जानते हैं, प्रोटोकॉल्स नहीं जानते हैं, बस उन्हें पता है हाँ साहब मेरा बैंक का नाम ये है, तो वो लोगो दिखना चाहिए और नाम दिखना चाहिए। अब अंग्रेजी भी तो देख लो, रक्षित टंडन लिखा है या रक्षित टोंडोन लिखा है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको याद होगा, बिल्कुल आपको याद होगा, जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक UPI ID निकाली डोनेशन के लिए, PMCare@SBI। विदिन 30 to 35 मिनट्स more than 300 फेक IDs वर जनरेटेड। और क्या था? PM Cares@SBI, PMCAER@SBI, बना के बहुत माइन्यूटली देखना चाहिए। डोमेन्स कहते हैं इसको हमारी भाषा में, कि आपको .gov.in खोलना है या gov.in खोलना है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्टर टंडन, एक एंटरप्रेन्योर है, इंडिविजुअल ने अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले ली, ख्याल रख रहा है, सब एस्पेक्ट्स को देख रहा है, अपनी तरफ से तो कर रहा है, लेकिन सप्लाई चेन भी है। क्या सप्लाई चेन की वजह से भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि चेन कंप्लीट है? और अभी एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने आया, वर्ल्ड के सामने, जब अमेरिका के अंदर एक सोलर विंड अटैक हुआ, जिससे अमेरिका के पूरे सरकारी कंप्यूटर्स और सर्वर्स को नुकसान पहुंचा। तो सप्लाई चेन क्या होती है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपके कंप्यूटर में एक बाहर का कंपनी है जो अपना सॉफ्टवेयर देती है, हम लोगों ने पूरे सुरक्षा मापदंड रखे हुए हैं, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा IT सिस्टम है, सिक्योरिटी है, लेकिन वो जो बाहर का सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में आ रहा है, उसका जो अपडेट आ रहा है, उनके कंप्यूटर में कोई कमज़ोरी थी, वो किसको पता है? हैकर को पता है। तो हैकर ने वहाँ से फिल्ट्रेशन किया, बजाय आपके यहाँ डायरेक्ट अटैक करने के, वो आपके यहाँ चाय वाला बन के घुसाया।
तो जो सप्लाई चेन होती है हमारी एक्सटर्नल्स, उनके साथ भी हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमने एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर ले रखे हैं, अकाउंटिंग के लिए लोग खरीद लेते हैं, इन्वेंट्री के लिए खरीद लेते हैं, तो उनका भी एक तरह से हमारी टेक्निकल भाषा में कहते हैं VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेन टेस्टिंग, ये कर लेनी चाहिए। मतलब एक तरह से अपना अल्ट्रासाउंड कैट स्कैन कर लेना चाहिए अंदर घुसने से पहले। कोई भी सप्लायर अगर मुझे कोई चीज़ दे रहा है, एक छोटी सी फाइल भी दे रहा है, तो इट हैज़ टू बी स्कैन्ड प्रॉपर्ली और उसके सारी वल्नरेबिलिटी या उसमें कोई वायरस तो नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूँ, 2 साल पहले बहुत बड़े CA नेटवर्क्स पे एक अटैक हुआ। क्यों हुआ साहब? CA जो लोग होते हैं वो आजकल अपने ऑनलाइन रिटर्न भर रहे हैं और ऑनलाइन रिटर्न के लिए वो रिमोट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो एक हैकर ने रिमोट सॉफ्टवेयर, बड़ा फेमस होता था एमी एडमिन, नाम सुने होंगे, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, उनके सर्वर में रैंसमवेयर डाल दिया। अब जिस CA ने भी अपना रिटर्न भरने के लिए वो एमी एडमिन डाउनलोड किया, वो पूरा का, अब वो क्या कह रहा है, मेरे तो सारे 100 क्लाइंट हैं, 31 तारीख सिर पे सारे रिटर्न भरने, सारा डेटा खत्म। तो आप सोचो कितना बड़ा एक हैवॉक हो जाता है। तो ये बेसिकली सप्लाई चेन को बहुत ध्यान देना जरूरी है आज की तारीख में। यू कैन नॉट इग्नोर इट। आप जैसे भी कुछ देर पहले आपने बताया, आप प्रॉपर्ली इंश्योर करें, देखें वो जो लेटर्स सब प्रॉपर्ली हैं। अच्छा, ये फिशिंग जो मेल्स होती हैं, इसको आप बताएं रिकग्नाइज करते समय और क्या एस्पेक्ट्स देखें, कुछ ऐसे कॉमन इंडिकेटर्स हों कि पता चल जाए इसमें कुछ गड़बड़ है। शुरुआत तो हम लोग प्रोटोकॉल से कर देते हैं कि भाई HTTP, HTTPS, अब तो वो बेईमान HTTPS भी बना लेते हैं। लेकिन हाँ, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि नाम और स्पेलिंग और लेटर्स, तो उसके लिए भी अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते तो आज बहुत सारे AI बेस्ड टूल्स हैं, ओपन सोर्स टूल्स हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट एंड दे कम एज अ एड ऑन। एड ऑन मतलब वो आपके ब्राउजर पे आके बैठ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की तरह। तो जैसे ही मेरे पास कोई गलत लिंक आता है, वो हड़ाक से लाल रंग से वार्निंग दे देता है। जैसे अब गूगल में इनबिल्ट है, एक रेड अलर्ट आ जाता है। तो ये टूल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, वायरस टोटल करके बड़ा पॉपुलर ओपसेंट है, जिसमें आप अपना वेबसाइट का लिंक डालो, वो बता देगा ये फिशिंग है, ये नहीं है। तो एक बेसिक वहाँ से आपको मिल सकता है। तो वी कॉल देम एंटी फिशिंग टूल्स। राइट। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कफोर्स है, उनका भी अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी। हाँ, उनको मतलब कैसे उनको ट्रेनिंग हो, कैसे वो ख्याल रखें, क्योंकि सभी को इसका पार्ट बन के ही आगे मूव करना पड़ेगा। उसमें हम लोग मॉक ड्रिल्स करते हैं आजकल। जैसे भी कंपनी में हमने ट्रेनिंग दे दी, आज आपके आके आपके सारे एम्प्लॉयज़ को समझा दिया, आज तो सीख गए, कल हम सोचता है फिर से गलती करें, तो हम लोग मॉक ड्रिल्स करते हैं। हम जानबूझ के उन लोगों को नकली मेल्स भेजते हैं और उन्हें ट्रैप, और फिर हम रिपोर्ट बना के दिखाते हैं कि देखो अभी इसको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इससे गलती हुई। तो ये 2-3 एरियाज होते हैं। हर बिजनेस का एक सेंसिटिव एरिया होता है, प्रोडक्शन, फिनेंस और लॉजिस्टिक्स। ये बहुत सेफ रहने ज़रूरी हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स हों रेगुलर और मॉक ड्रिल्स हों। साइबर सिक्योरिटी की हैकिंग एक्सरसाइज उनके ऊपर करें, तब जाके वो लोग ट्रेन होते हैं एंड देन दे बिकम प्रॉपर अलर्ट, और जिसे हम कह सकते हैं साइबर हाइजीन। अब SMEs ने आपकी बात सुनी, अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के फ्रंट पर। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वो भी क्रूशल है, एक जर्नी को पूरा प्लान कर रहे हैं इस फ्रंट पर, अब उसकी सीरियसनेस, गंभीरता समझ रहे हैं इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम कैसे रखें? देखिए, पहला कदम तो ये है कि अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रॉपर एक इन्वेंटरी बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने कहाँ कहाँ अपने सप्लायर्स बना रखे हैं, डोमेन्स कहाँ हैं, सर्वर्स कहाँ हैं, उनकी एक्चुअल वो क्या है। मैं आपको बताऊँ छोटे से एग्जाम्पल, लोग फ़ोन करके कहते हैं, हाँ साहब मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट बना दो। बन गई? कहाँ बनी, कैसे बनी, उसका मालिक कौन है? 2 साल बाद जब रिन्यूअल आता है, पता चलता है वो डोमेन हमारे पास ही नहीं है, उस पर तो कोई उल्टी सीधी वेबसाइट चल रही है। तब वो बिजनेसमैन परेशान होता है। तो बेसिक्स यहाँ से शुरू होते हैं। जब आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाते हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर, अपने वेंडर्स कौन हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, और हमारा फ्लो क्या है, काम का फ्लो क्या है हमारा, और हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है अपने व्यापार में कि क्रूशल क्या है मेरे लिए और नॉन क्रूशल क्या है। तो मेरा फोकस क्रूशल पे रहता है। आज अगर मेरे क्लाइंट की लिस्ट और उसका रेट बाहर लीक हो जाए तो मेरे धंधे को नुकसान होना है, सीधी सी बात है। तो मेरा फोकस होना चाहिए कि जहां मेरे बायर्स और क्लाइंट्स की ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोटेशंस जा रही हैं, बिलिंग जा रही है और सैम्पलिंग जा रही है, दैट हैज़ टू बी सिक्योर। सो दैट कैन ओनली बी डन थ्रू अ पॉलिसी। ओके डॉक्टर टंडन, लास्ट कमेंट से पहले एक और पहलू आपसे छूते हैं। ये भी देखा गया आजकल जर्नली, जैसे लोग कार्ड्स रखते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जर्नली कह रहे हैं वॉलेट में इसको मत रखें, वो एल्यूमिनियम फॉइल में इसको रखें। वो कई RFID क्या RFID वॉलेट्स आ गए ये। So I keep all my cards. I don't keep any of my cards in my leather wallet. I keep it here. ये RFID blockers, you can easily buy it in the market. और उससे एडवांटेज क्या होता है कि कोई मिसयूज नहीं कर सकता। वरना क्या है, मेरे लेदर वॉलेट में रखा था, मैं PVR की लाइन में खड़ा था, हैकर आया, मशीन लेकर टप टप करके निकल गया, तो हो गया, पता ही नहीं चला। बट इसका एक और खूबसूरत पहलू बताऊं आपको, RBI ने कानून के तहत बहुत अच्छा एक फीचर दे दिया जो हम, सो आई यूज माई फोन एंड ऑल माई कार्ड्स आर लॉक्ड।
नाउ आई गो टू द पेट्रोल पंप, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, मुझे पेमेंट करनी है, मैंने मोबाइल खोला, जो भी पेमेंट मोड है उसमें 4 मोड्स होते हैं हर कार्ड में, कॉन्टैक्टलेस, स्वाइपिंग, एटीएम। तो मैंने कहा कॉन्टैक्टलेस, मैंने उसे ऑन किया, काट दिया, पेमेंट हो गई, फिर ऑफ कर दिया। अब इन केस अगर कार्ड कहीं से भी चोरी हो जाए, मेरा 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा। सो दिस इज एप्लीकेबल ऑन डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। द ओनली थिंग इज यू शुड नो द इंटरफेस। आपको अपने मोबाइल ऐप पता होना चाहिए कि आपके बैंक के मोबाइल ऐप में ये फीचर है और ये आरबीआई ने कंपलसरी किया है। बड़ा सेशन इंटरेस्टिंग रहा है, इन्फॉर्मेटिव भी होगा एसएमईज के लिए। चलते हुए आप एक फाइनल कमेंट ये बता सकें, स्मॉल बिजनेसेस ये प्रिकॉशंस के बाद भी अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कोई साइबर अटैक है या इनफैक्ट किसी तरह का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है ऑनलाइन, तो इमीडिएटली तब उनको क्या करना चाहिए? उस बहुत बड़ा एक हमने हेल्पलाइन बनाया है इमरजेंसी, दिस इज 1930। इसे पहले 155260 कहा जाता था। इसमें क्या हो रहा है कि हमने अभी, जैसे आप एग्जांपल दूँ, राजस्थान में हमारे पास करीब 100 करोड़ का फ्रॉड हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड में, और हमने 10 करोड़ वापस करा दिए। ये 10 करोड़ उन लोगों के थे जिन्होंने इमीडिएटली कॉल किया और अपनी डिटेल्स जमा करा दी। बशर्ते उनको पता हो, ट्रैक रखें और इन्फॉर्म करें। 1930 कॉल करिए इमीडिएटली, आप पे वो ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाती है एसएमएस पे कि गलत पैसा निकल गया, वो बताइए, और उसके बाद उसकी डिटेल www.cybercrime.gov.in में जाके भर दीजिए। ये 2 काम अगर आप बहुत जल्दी और टाइमली कर देते हैं तो पूरी हमारी कोशिश रहती है, जो हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, I4C कहते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, जिसने सारे स्टेट्स को जोड़ा है और सारे बैंक्स को जोड़ा है। उनको वो इसी समय अलर्ट जाता है कि भाई ये फ्रॉड है, तो वो उसे फ्रीज कर देते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पाया जाता है फ्रॉड है तो वो बैक गियर में वापस चला जाता है और वो जो पीड़ित है उसको पैसा वापस मिल जाता है। जी, तो इतना ही समय था। डॉक्टर अक्षय टंडन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. साइबर सिक्योरिटी पर स्मॉल बिजनेसेस की हैंड होल्डिंग करने के लिए थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं एसएमईज इसकी अहमियत को समझेंगे और इस तरफ कदम जरूर बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।